Good morning, students. Now today beta in this class I want to discuss you one more new program that is based on box plot. Before this I have discussed how can we create different boxes. Okay, how can we create different box plot. So you as you know that box plot includes five values: minimum, maximum, first quartile, second quartile, and last quartile, or you can say third quartile. Okay, so these terms are included in plotting the box. So a program you can see on screen, this is to form two boxes. Okay, that is, this program is to plot two boxes, and to form those boxes we have taken data using list 1 and list 2, और इसमें equal to list 1 comma list 2 मैंने पास कर दिया. Okay बेटा, and we can print all this using this method plt.boxplot data what is equal to 0. Here vert, this parameter you know beta, at line number 47c vert is equal to 0. What is the meaning? Its meaning is that boxes will be displayed horizontally. Okay, in horizontal direction boxes will be displayed. And this parameter patch artist, do you know what is the meaning of this selected value? At line number 47, patch artist is equal to true. It means color will be displayed for particular box. Okay, so this was explained in previous class, and now based on this topic I am going to explain a new program. Okay, which is to form boxes. So now just I am going to open new program. See here beta, new program. Here in this program you can find value 1, value 2, value 3 and value 4. That is four types of data I have taken. It means we want to create four boxes. We want to plot four boxes here. Okay, and each box will include those five terms which I have discussed previously. Okay, so for four types of data, there are value 1, some values are here, value 2, value 3 and value 4. Okay, there is no confusion. It is like previous program, and here in data variable I have collected all these values, value 1 comma value 2, value 3 and value 4. That is, all these values will be represented by a single variable at line number 15, data. Data variable will represent all these values. Okay, and all these values of all four boxes. So up to this point I think all the things are same as you have seen in previous program. And here at line number 16 beta C, box is equal to plt.boxplot data, as you have passed this parameter in previous program. Similarly it has been passed in this program, data, and comma word is equal to 0. This is also same, and patch artist is equal to true. Up to this point everything is same as in previous program. Okay, now the different thing which you can see, that is another parameter we have passed. Name of that parameter is levels is equal to. It means for those boxes we are going to create levels. तो यहाँ पे हमने लिखा है बेटा level is equal to course 1, course 2, course 3 and course 4. It means when those boxes will be displayed, these levels will be there to refer those boxes. Okay बेटा, तो एक वन मोर हमने एक न्यू पैरामीटर को पास किया है. नेक्स्ट पैरामीटर इज वेरी इंपॉर्टेंट which is there, that is we want to set different color for all the boxes. Actually before this one program I explained in which two boxes were created, but color of both the boxes were same. Okay, can you remember it beta? Color of both the boxes were same, but this time we want to set different color for all boxes. So for this a different type of work can be performed here. Okay, so for that purpose only I have written some different lines from line number 19 to 21. I have selected these lines, but you can
count from line number 19 to 21. Okay, these three lines are to form different color for different boxes. Okay, that is each box will be of different color using 19 to 21 line numbers. Okay, so now you have got what is the purpose of the code which is written from line number 19 to 21. अब इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी, बट बिफोर दिस इसमें एक zip फंक्शन यूज किया गया है. तो just before explaining these lines 19 to 21, I want to explain you what is the meaning of zip function here actually. Okay beta, so if you are aware about the zip function, then you can understand what is the meaning of this code which is written from 19 to 21. Okay, so first of all I make this program comment and then I am going to explain you what is the exact meaning of zip function. तो आप पहले zip function को समझिए, then आप दूसरी चीजों को समझिएगा इसमें. ओके बेटा, तो देखिए मैंने इन लाइंस को पहले एक्टिव किया है. Here some lines are active from line number 24 to 29. Now this time I am going to explain you from 24 to 29. ओके बेटा, यहां देखिए इन लाइंस का मीनिंग क्या है. जिप फंक्शन का मीनिंग हमें देखना है पहले. एक्चुअली जिप फंक्शन का आप लोग यूज ऐसे कर सकते हैं, जैसे आपको मालूम है एक एरे होता है, तो इन एरे वी कैन रिप्रेजेंट एनीथिंग यूजिंग इट्स सबस्क्रिप्ट. जैसे एरे में कोई भी वैल्यू है उसको हम सबस्क्रिप्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो उसमें हम क्या करते हैं, एक टाइप की वैल्यूज होती हैं जिनको रिप्रेजेंट करते हैं. यहां पर यूजिंग जिप फंक्शन का यूज करके एक्चुअली हम एक ऐसे एज्यूम कर सकते हैं कि हम एक ऐसा एरे बनाएंगे जो कई वैल्यूज को रिप्रेजेंट करेगा. जैसे नंबर्स मैंने लिखा है, एक नंबर्स लिखा और एक लेटर लिखा है. नंबर है 1, लेटर है A. नंबर है 2, लेटर है B. नंबर है 3, लेटर है C. इट मींस एक अगर हम ऐसा एरे क्रिएट कर लें जिसमें एक वैल्यू हो 1 और A, सेकंड वैल्यू हो 2, B और थर्ड वैल्यू हो 3, C, तो दैट इज 1, A को रिप्रेजेंट करने वाला एक एरे हो गया, 2, B को रिप्रेजेंट करने वाला दूसरा एरे हो गया, दूसरा सबस्क्रिप्ट हो गई, एंड 3, C को रिप्रेजेंट करने वाली थर्ड सबस्क्रिप्ट हो गई. तो दैट इज उन सबस्क्रिप्ट के थ्रू हम इस एरे को रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसमें कौन कौन सी वैल्यूज होंगी, 1A, 2B एंड 3C. इट मींस इन वैल्यूज को इंक्लूड करके हम एक एरे बना सकते हैं. तो यहां देखिए जिप में क्या है, जिप नंबर्स कॉमा लेटर्स एंड प्रिंट लिस्ट जिप्ड हमने लिखा है. पहले इसका आप आउटपुट देखिए बेटा, देन यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई वांटेड टू एक्सप्लेन. यहां देखिए बेटा नंबर एंड लेटर्स दोनों को मैंने जिप में पास कर दिया है, नंबर्स कॉमा लेटर्स. एंड नाउ अ न्यू थिंग यू हैव गॉट, दैट इज इन जिप्ड. एट लाइन नंबर 26 पे बेटा देखिए एक वेरिएबल है जिप्ड. तो व्हाट वी गेट इन जिप्ड वेरिएबल, इन जिप्ड वेरिएबल वी गेट अ कलेक्शन ऑफ 3 वैल्यूज एंड ईच वैल्यू कंटेन्स 2 थिंग्स. ये आप देखिए यहां बेटा आउटपुट में देखिए, पहली वैल्यू आपकी जो रिप्रेजेंट हो रही है वो 1, A है, सेकंड वैल्यू 2, B है और जो थर्ड वैल्यू है वो 3, C है. दैट इज वी कैन से 1, A इज वन वैल्यू, 2, B इज डिफरेंट वैल्यू एंड थर्ड, C इज डिफरेंट वैल्यू. बट ये 1, A ये एक वैल्यू, 2, B ये एक वैल्यू एंड 3, C ये एक वैल्यू, ये दोनों मिलाकर के एक सिंगल वैल्यू हो रही है. ओके, तो इस तरह से कई वैल्यूज को एक साथ लेकर के हम इनमें अलग अलग एरे बना लिया हमने. You can say that we have created an array of different groups. अलग अलग ग्रुप्स का एरे बना लिया. For this purpose we can use zip function here. Okay? इससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे मैंने नोट्स भी लिखे हैं, जैसे zip holds an iterator object. zip. तो यहाँ पे iterator object मीन्स जिनमें इटरेशन है, जो वैल्यू चेंज हो रही है उन सबको रख लिया. ओके, देन आगे यहाँ पे लाइन नंबर 30 समथिंग हैज बीन रिटन. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. यहां लिखा है बेटा, टू रिट्रीव द फाइनल लिस्ट ऑब्जेक्ट यू नीड टू यूज लिस्ट टू कंज्यूम द इटरेटर. तो ये जो वैल्यूज हमारे पास है इनसे यूज होकर के ये जो इटरेटर्स बन गए 1, A, 2, B एंड 3, C, ये एक इटरेटर बन गए हैं. तो इनका जो रिजल्ट है वो कंप्लीटली जिस वेरिएबल में है दैट इज जिप्ड. तो ज्यादा इधर उधर
ना समझ के यू कैन अंडरस्टैंड अ सिंपल थिंग दैट इज एक एरे बन गया है ग्रुप्स का, और जिसमें ग्रुप में कौन सी वैल्यू है, जैसे 1 a एक ग्रुप, 2 b सेकंड ग्रुप एंड 3 c थर्ड ग्रुप। तो इन ग्रुप्स का एरे हमने बना लिया है, और इन ग्रुप्स में जो वैल्यूज हैं वो सारी इटरेशंस हैं जिनको लिया गया है। ओके, तो जिप का ये फंक्शन, जिप फंक्शन का हमारे पास ये रोल है। ओके, इसी तरह से यहां पे देखिए हमने कलर के लिए यूज किया है इसको। अब इस प्रोग्राम को मैं कमेंट बना रहा हूं, फ्रॉम लाइन नंबर 24 टू 29, इसको कमेंट बनाया। अब नाउ कम टू ऑन प्रीवियस प्रोग्राम। जिप को कैसे हमने यूज किया है ये हमें देखना है। अब यहां देखिए बेटा जिप को कैसे यूज किया है। तो जो अप टू लाइन नंबर 18 सब कुछ क्लियर है, 19 टू 21 यू हैव टू अंडरस्टैंड। नाउ यू नो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जिप। जिप की वर्किंग अब आपको क्लियर हो गई। तो यहां पे देखिए जिप का यूज हमने कैसे किया है। एक्चुअली यहां पर जो भी बॉक्सेस हैं, हर बॉक्स को एक पैच के रूप में एज्यूम किया गया है। इंटरनली इट इज रिप्रेजेंटेड एज अ पैच। ओके, पैच के फॉर्म में लिया गया, और हर पैच का हमें कलर चेंज करना है। बॉक्स का कलर चेंज करने का मतलब हर पैच का हमें कलर चेंज करना है। तो यहां पे देखिए एक हमने एरे बनाया है लाइन नंबर 19 पे, जो कलर्स का एरे है। कलर इज इक्वल टू, यहां पे हमने एक एरे बनाया जिसमें लिखा है, कलर्स के नेम दे दिए, देखिए 1 2 3 एंड 4 डिफरेंट कलर्स आर हियर। इन कलर्स के नेम्स को यहां पे दिया गया। ओके, तो कलर से एक एरे बना लिया जिसमें 4 हमारे पास कलर सेट हो गए, और हर पैच के लिए हमें इसमें से एक कलर देना है। सेकंड थिंग यहां देखिए, फॉर पैच एट लाइन नंबर 20, फॉर पैच, क्योंकि मैंने बताया यहां पे अलग अलग जो बॉक्स है दैट इज रिप्रेजेंटेड इंटरनली लाइक अ पैच। ओके, तो फॉर पैच देन मैंने क्या लिखा है, CLR, ये अपनी तरफ से एक मैंने वेरिएबल फॉर्म कर दिया है, CLR फॉर कलर, CLR इन जिप। तो CLR इन जिप, और ब्रैकेट में कौन कौन सी वैल्यू है बेटा, बॉक्स। तो यहां पे बॉक्स देख रहे हैं ऊपर लाइन नंबर 16 पे जो बॉक्स है, इस बॉक्स में दैट इज कि सारे बॉक्सेस इसके अंदर हैं। ओके, तो ये बॉक्स एक्चुअली एक एरे बन गया जिसमें सारी वैल्यूज हैं। बॉक्स और स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है बॉक्सेस। तो इस बॉक्स के जितने भी बॉक्सेस हैं, इस बॉक्सेस से आप कह सकते हैं कि अलग अलग सबस्क्रिप्ट के थ्रू बॉक्स रिप्रेजेंट होंगे। तो ये अंदर जो सिंगल कोड में बॉक्सेस है, दिस विल रिप्रेजेंट द सबस्क्रिप्ट ऑफ ईच बॉक्स। और ये जो बॉक्स है, कंप्लीट बॉक्स लिखा हुआ है जिसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूं, ये पूरे बॉक्स एरे को रिप्रेजेंट करेगा, और जो अंदर सिंगल कोड में बॉक्सेस लिखा है, दिस विल रिप्रेजेंट द सबस्क्रिप्ट ऑफ ईच बॉक्स। तो दैट इज एक एक बॉक्स के लिए है। तो इन जिप हर एक बॉक्स को ले रहा है, कॉमा कलर्स। तो यहां पे देखिए दोनों चीजों का एरे हमारे पास है, एरे ऑफ बॉक्सेस एंड एरे ऑफ कलर्स। ये दो डेटा हमारे पास हो गए जिनको हमने जिप में पास कर दिया। ओके, देन पैच डॉट सेट स्पेस कलर। सेट स्पेस कलर इज अ मेथड ऑफ पैच। ओके, ये पैच का एक मेथड है। तो सेट पैच कलर हमने लिया और इसमें पास कर दिया CLR। तो यहां पे एक्चुअली जो ये CLR है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पे जो जिप कर दिया है बॉक्स में, दो चीजों को। एक बॉक्स में तो जो पर्टिकुलर बॉक्स और उस बॉक्स से रिलेटेड कलर, तो इन दो चीजों का कंबाइन करके हमने एरे बनाया। जैसे कि यहाँ पे 1 a एक वैल्यू है, 2 b दूसरी वैल्यू है, 3 c तीसरी वैल्यू। आउटपुट में देखिए लाइक दिस, हियर बॉक्स 1 फर्स्ट कलर एक वैल्यू, देन बॉक्स 2 कलर सेकंड वैल्यू, देन बॉक्स 3 कलर थर्ड वैल्यू, एंड बॉक्स 4 कलर फोर्थ वैल्यू। तो इन बॉक्स और कलर की वैल्यू को एक एरे से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो वो जिस एरे से रिप्रेजेंट किया जा रहा है दैट इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग जिप फंक्शन। ठीक है, जिप के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, एक नया एरे बना रहे हैं जिस एरे में दो कॉम्बिनेशन की वैल्यू है, एक बॉक्स और एक कलर, एक बॉक्स और एक कलर। ओके बेटा, नाउ दिस CLR you will set here at line number 21, CLR you can set। अब इसके थ्रू यहां पे फॉर ईच बॉक्स कलर अरेंज हो जाएगा। ओके बेटा,
So I think you have got how can we set color for different boxes. तो इनके लिए zip function को जानना जरूरी है and after that to implement zip function in this question, that is important. Now finally I am going to execute this program. Now you can find beta, this is the output. Okay, if you want to change color of any box, here you can write like this. जैसे आपने यहाँ रेड लिख दिया, अब देखते हैं its output, you have changed its color. Okay beta, so like this color can also be changed. So I hope you have got what is the meaning of zip and what is the meaning of pet and how can we set color for different boxes. फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ लीजिएगा मुझसे, ओके, ऑन वेबएक्स और व्हाट्सएप. Now I am going to close this video. Thanks for watching.